Hello children, today our topic is My Experiments with Truth from the English Literature book of DAV Class 6 Chapter 4. It is an extract from the same titled book My Experiments with Truth. It is an autobiography of M.K. Gandhi covering his life from early childhood through to 1921. The writer Mohandas Karamchand Gandhi, lovingly called the father of the nation, was born on October 2, 1869 at Porbandar, a small town on the western coast of India. मोहनदास करमचंद गांधी को सब प्यार से बापू कह के बुलाते थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में भारत के पश्चिमी घाटी पोरबंदर नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनका अहिंसा असहयोग जग विदित है। दुनिया भर के लोग उन्हें महात्मा मीन्स की द ग्रेट सोल्ड वन नाम से भी जानते हैं। But children, today we will not read about the Mahatma or our non-violent soldier of independence, but today we are going to read about an ordinary child, an ordinary boy, and going to have an extraordinary experience of how he becomes Mahatma. So be ready to have a wonderful experience. So come to the text. My experiments with truth. Written by M.K. Gandhi. I was put into a primary school and I can well recollect those days, including the names and other particulars of the teacher who taught me. मुझे जब प्राइमरी स्कूल में भर्ती किया गया तो मैं ज़रूर 7 साल का रहा होगा और मुझे उन दिनों की बात अच्छे से याद है, यहाँ तक कि जो टीचर हमें पढ़ाते थे उनके नाम और उनकी और भी कई सारी विशेषताएं। I do not remember having ever told a lie either to my teachers or to my schoolmates. I used to be very shy and avoided all company. My books and my lesson were my sole companions. मुझे याद नहीं आता कि मैंने कभी भी मेरे टीचर से या क्लासमेट से झूठ बोला हो। मैं बहुत ही शर्मीला था और दोस्तों से दूर रहता था। मेरी किताबें और मेरी पढ़ाई यही मेरे एकमात्र साथी थे। To be at school at the stroke of the hour and to run back home as soon as the school closed, that was my daily habit. एकदम समय पे स्कूल पहुंचना और जैसे ही छुट्टी होती दौड़ के घर वापस जाना, ये मेरी रोज़ की आदत थी। Two incidents belonging to this period have always clung to my memory. As a rule, I had a distaste for any reading beyond my school books, but somehow my eyes fell on a book purchased by my father. इस समय की 2 घटनाएं मेरी स्मृति में हमेशा ही रहती हैं। मुझे स्कूल की किताबें छोड़कर और कोई भी किताब पढ़ने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन किसी तरह मेरी नज़र मेरे पिता के द्वारा खरीदी गई किताब पर पड़ी। इट वॉज श्रवणा पितृभक्ति नाटका, अ प्ले अबाउट श्रवणा's डिवोशन टू हिज पेरेंट्स। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। इस किताब का नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक और इस नाटक में श्रवण का अपने पेरेंट्स के प्रति जो डिवोशन यानी श्रद्धा थी वो दर्शाया गया था। मैंने गहरे आग्रह के साथ इस किताब को पढ़ा। One picture in the book showed Shravana carrying his parents on pilgrimage. इस किताब में एक छवि थी जिसमें श्रवण कुमार अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा में ले जाते हुए दिखाए गए थे। Children, you can see the picture how Shravana carrying his parents. बच्चों, असल में श्रवण कुमार के माता पिता ब्लाइंड थे। The book and the picture left an undying impression on my mind. Here is an example for you to copy, I said to myself. ये किताब और वो दृश्य मेरे दिमाग में एक अनडाइंग यानी कभी न मिटने वाली छाप छोड़ गए और मैंने अपने आप से कहा, अपने जीवन में कॉपी करने के लिए, उतारने के लिए तुम्हारे लिए यहाँ एक एग्जाम्पल है।
Another similar play, Harishchandra, captured my heart. Why should not all be truthful like Harishchandra? Was the question I asked myself day and night. और ऐसा ही एक दूसरा नाटक हरिश्चंद्र ने मेरे दिल को छू लिया। क्यों हर कोई हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी नहीं होते? मैं दिन रात अपने आप से यही सवाल पूछता। To follow truth and to go through all ordeals Harishchandra went through was one ideal. It inspired in me. सच्चाई की राह पे चलने के लिए हर एक कष्ट, हर एक तकलीफ से हरिश्चंद्र गुजरे, लेकिन उन्होंने एक ही आदर्श को पकड़ के रखा। इस बात ने मुझे बहुत ही प्रेरित किया, यानी प्रेरणा दी। There was another such incident during the time when I was in 7th standard. Dorabji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. ऐसी ही एक और घटना उस समय की है जब मैं 7th क्लास में था। डोराबजी जिमी, जो हमारे हेडमास्टर थे, वो लड़कों में बहुत ही प्रिय थे क्योंकि वो अनुशासन प्रिय, कायदे कानूनों के पाबंद और एक अच्छे शिक्षक थे। He had made gymnastics and cricket compulsory and I disliked both. इन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपलसरी कर दिया था और मुझे ये दोनों ही नापसंद थे। I never took part in any exercise before they were made compulsory. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. जब तक ये कंपलसरी नहीं थे तब तक मैं कोई भी तरह के एक्सरसाइज यानी खेल कूद या व्यायाम में हिस्सा नहीं लेता था। तब मुझे गलत धारणा थी कि जिम्नास्टिक का पढ़ाई के साथ कोई मेल नहीं है। Today I know that physical training is as important as mental training. लेकिन आज मैं जानता हूँ, इस बात को समझता हूँ कि शारीरिक कसरत भी उतनी ही ज़रूरी है जितने की दिमाग की। The reason for my dislike for gymnastics was my keen desire to serve as nurse to my father. As soon as the school closed, I would hurry home and begin serving him. मेरे जिम्नास्टिक को पसंद ना करने की वजह थी मेरे पिताजी की नर्स की तरह सेवा करने की मेरी तीव्र इच्छा। जैसे ही छुट्टी होती मैं जल्दी से घर पहुंचता और उनकी सेवा में जुट जाता। Now it happened that one Saturday I had to go from home to school for gymnastics at 4 o'clock in the afternoon. I had no watch and the clouds deceived me. When I reached the school, all the boys had already left. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. एक शनिवार को ये हुआ कि मुझे जिम्नास्टिक करने के लिए 4 बजे घर से स्कूल पहुंचना था। मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी और बादलों ने मेरे साथ धोखा किया, यानी बादलों के कारण वे समय का अनुमान नहीं लगा पाए। जब मैं घर पहुंचा तो सारे लड़के जा चुके थे। दूसरे दिन जब मुझे अनुपस्थिति का कारण पूछा गया तो मैंने जो घटना घटी थी वो मेरे हेडमास्टर जी मिस्टर जिमी को बताई। He refused to believe me. I was convicted of lying. That deeply pained me. How was I to prove my innocence? There was no way. उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझे झूठ बोलने का दोषी पाया गया था, जिससे मुझे गहरी चोट पहुंची। काफ़ी दुख हुआ। मैं कैसे अपनी बेगुनाही साबित करूं? कोई रास्ता नहीं था। I learned that a man of truth must also be a man of care. This was the first and last instance of my carelessness in school. मैंने सीखा कि एक सच बोलने वाले इंसान को केयरफुल होना चाहिए, मतलब सच बोलने के साथ केयरफुल होना, चीज़ों का समय का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। ये स्कूल में मेरी पहली और आखिरी लापरवाही की घटना थी। But there is another neglect for which I am still paying the penalty. I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education, but I retained it until I went to England. लेकिन एक और अवहेलना थी
जिस बात की सज़ा मैं अभी भी भुगत रहा हूँ। मुझे नहीं पता कब ये बात मेरे जहन में आई कि अच्छी हैंडराइटिंग शिक्षा का एक ज़रूरी हिस्सा नहीं होती। मतलब तब उन्हें लगता था कि अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी हैंडराइटिंग का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैंने अपनी ये आदत बरकरार रखी जब तक कि मैं इंग्लैंड नहीं गया। When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwriting of lawyers and young men, I was ashamed of myself and repented of my neglect. I saw that bad handwriting was regarded as a sign of imperfect education. बाद में खासकर साउथ अफ्रीका में मैंने जब लॉयर यानी वकीलों की और यंग लड़कों की सुंदर हैंडराइटिंग देखी तो मुझे अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और मुझे अपनी इस लापरवाही के लिए पश्चाताप भी हुआ। मैंने देखा कि खराब हैंडराइटिंग को इम्परफेक्ट एजुकेशन का साइन माना जाता है। मतलब कि अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है तो ये पता चलता है कि आप पढ़ाई में भी खास नहीं हैं, आपकी शिक्षा अधूरी है। I tried later to improve mine, but it was too late. I could never repair the neglect of my youth. मैंने बाद में अपनी हैंडराइटिंग सुधारने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने बचपन की इस गलती को कभी ठीक नहीं कर पाया, यानी अपनी हैंडराइटिंग सुधार नहीं पाए। There is another incident which I must share. I committed a theft when I was 15. I had run into a debt of about 25 rupees. My brother had on his arm an armlet of solid gold. I stole a bit of gold out of it and the debt was cleared. एक और घटना है जो मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए। मैंने 15 साल की उम्र में एक बार चोरी की थी। मेरे ऊपर करीबन 25 रुपये का कर्ज हो गया था। मेरे भाई के पास एक सोने का कड़ा था। मैंने उसमें से थोड़ा सा सोना चुरा लिया और मेरा कर्ज चुक गया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर। आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर, बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। नॉट दैट आई वॉज एफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी. I was afraid of the pain that I should cause him. I decided at last to write out the confession. लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने संकल्प लिया कि मैं दोबारा कभी चोरी नहीं करूँगा और मैंने पिताजी के पास ये अपराध स्वीकार करने का मन बना लिया, लेकिन मुझे ये बोलने का साहस नहीं हुआ। मैं इस वजह से नहीं डर रहा था कि वो मुझे मारेंगे, बल्कि मैं डर रहा था उस दर्द से जो मैं अपने फादर को देने वाला हूँ। आखिर में मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने कन्फेशन को इस कागज़ में लिखूँगा। In this note, not only did I confess my guilt, but I also asked adequate punishment for it. I also promised never to steal in future. With trembling hands, I handed the confession to my father. He read it, and pearl drops trickled down his cheeks, wetting the paper. मैंने इस नोट में सिर्फ अपनी गलती ही नहीं मानी, बल्कि मैंने अपराध के लिए पर्याप्त सज़ा भी मांगी थी। मैंने ये भी वादा किया कि मैं भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा। कांपते हुए हाथों से मैंने ये कन्फेशन लेटर पिताजी के हाथों में दिया। उन्होंने इसे पढ़ा और उनके आँखों से मोती रूपी आंसू बहने लगे, जिससे वो पेपर भीग गया। Those pearl drops of love cleansed my heart and washed my sin away. A clean confession combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance. This incident for me was an object lesson in ahimsa. इन प्यार के मोतियों ने मेरे मन को साफ कर दिया और मेरे पाप को धो दिया। उस पाप को कभी दोबारा नहीं करेंगे, इस वायदे के साथ साफ साफ अपने अपराध को स्वीकार करना सबसे सच्चा पश्चाताप है। घटना अहिंसा की राह में मेरे लिए एक जीती जागती सीख है। So children, these are the habits, the virtues like to be truthful, to respect his parents, to respect everything, and to face any situation with daring,
to confess one's sin. His simplicity, his humanity are the powerful weapons of this Mahatma, a great worshipper of non-violence. Thanks for watching and subscribe my channel to get more videos on my channel. बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।